Welcome SVPites to presentation on chapter number 10, Life in Northern India, and this is part 2 of our presentation. So students, in our previous presentation, we have watched videos about northern plains and northern mountains. और नॉर्दर्न इंडिया के तीन पार्ट्स हैं. दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस प्रेजेंटेशन. कौन कौन से तीन पार्ट हैं? माउंटेन, प्लेन्स एंड डेजर्ट. ओके, सो नाउ वी विल वॉच अ वीडियो अबाउट इंडियन डेजर्ट. A desert is a barren and sandy land that receives very little rainfall. Deserts are formed over a long period of time as a result of poor rainfall and soil erosion. Naturally, deserts have very little vegetation. The desert region in India is located around the southwest part of the northern plains. The Thar Desert, also known as the Great Indian Desert, is located in western Rajasthan and covers a major part of the state. Rajasthan is also known as the desert state of India. The Aravalli Range lies in the eastern region of the desert state. The Thar covers a major part of Rajasthan and extends up to Gujarat, Punjab, and Haryana. Desert as a landform. Deserts do not have much vegetation because of scanty rainfall. Plant life exists only in the form of thorny shrubs and herbs, cacti, date palms, kikar, and babul, etc., that do not need much water. Lack of vegetation also causes soil erosion and dust storms. Strong winds that blow in deserts carry sand over long distances and form sandhills. These go up to even 500 meters high and are called sand dunes. Water and vegetation in deserts. Deserts also have oases, areas in a desert where there is water and plants. We see many date palms, shrubs, herbs, and some vegetation in oases. Naturally, there are human settlements around oases. Crops such as bajra, jowar, maize, sesame, and groundnuts are grown in summers, while wheat, mustard, rye, and cumin seeds, jeera, are grown in winters. Irrigation. The Indian government has greatly helped Rajasthan tackle the problem of water shortage by way of a big canal called the Indira Gandhi Canal, also known as the Rajasthan Canal, which brings water from river Satluj to Rajasthan. The 500 kilometers long canal provides water to northwestern Rajasthan, Ganganagar district, as well as parts of Bikaner district. The canal has helped the people of the desert state to tackle water shortage faced in households and farms too. More and more land is now being brought under cultivation. Wheat, maize, jowar, bajra, cotton, pulses, and sugarcane are also grown here now. The Indira Gandhi Canal also supplies drinking water to thousands of people living in the interiors of the Thar Desert region. Climate. The Great Indian Desert receives poor rainfall and is very dry and sandy. It has an extreme type of climate, very hot summers and very cold winters. The sun gets very hot during the day and cools down very fast at night.
This is why it becomes very hot during the day and very cold at night in the Great Indian Desert. Animal life of the Thar Desert. The Great Indian Desert is home to blackbucks, partridges, chital deer, the Great Indian bustard, wild cat, etc. These animals are able to withstand the difficult conditions in deserts. The camel is a major mode of transport in deserts because it has the unique ability to go for days on end without food or water. Its padded feet and strong legs help it go across deserts. Camels are also used for carrying heavy loads across long distances. Life and occupation of people living in deserts. As we have seen, people living in deserts have to face difficult conditions, especially with regard to the climate, food, and water. Most people in deserts do not live in fixed settlements but keep moving from place to place in search of food and water for themselves and their animals. They are called nomads. Rearing of sheep and goats is an important occupation of the people of Rajasthan. Some nomads also make a living as blacksmiths by making pots and pans, iron tools, and other useful things made of iron. A group of people traveling together on camels form a caravan. The pagri, that is the turban, angarkha, dhoti, pajamas, kamarband or patka, that is the waistband, form an integral part of a Rajasthani male's attire. Rajasthani women wear ghagra, that is long skirt, kurti or choli, that is tops and blouses respectively, and odhni. They use shoes known as jutis or modris, created from sheep, goat, or camel skin. The tribal women of Bhil, Gairi, and Meena wear various types of jewelry made of brass, silver, and land. So students, hope you liked the video about Indian desert, जो basically राजस्थान और राजस्थान की कल्चर के बारे में एक्सप्लेन करता है. Now let us come to our chapter, Life in Northern India. Okay, so let us start with the starter. Seema was enjoying her vacation in Shimla. Okay, तो सीमा जो है वो एंजॉय कर रही थी हर वेकेशन इन शिमला. और शिमला कहाँ पे है? शिमला इज इन नॉर्थ इंडिया. ओके, दैट इज इन माउंटेन एरिया. ओके, नॉर्दर्न माउंटेन. अ ब्यूटिफुल हिल स्टेशन विद हर फैमिली. शी सॉ अ ग्रुप ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स. तो सीमा ने क्या देखा? सॉ मतलब देखा. अ ग्रुप ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स, यंग बॉयज और गर्ल्स का ग्रुप वॉकिंग ऑन द मॉल रोड. वो क्या कर रहे थे? वॉक कर रहे थे ऑन द मॉल रोड एंड लिटरिंग ऑन द रोड. नाउ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरिंग? LITTERING. लिटरिंग मतलब गंदा करना, कचरा फैलाना. दैट इज कॉल्ड लिटरिंग. ओके, सो शी सॉ अ ग्रुप ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स वॉकिंग ऑन द मॉल रोड एंड लिटरिंग ऑन द रोड. रोड पे क्या गंदगी फैला रहे थे. शी विद द हेल्प ऑफ हर फादर. सो शी यहाँ पे किसके लिए? सीमा के लिए. तो सीमा विद द हेल्प ऑफ हर फादर, सीमा और सीमा के फादर ने जो है स्टॉप देम. ओके, उनको रोका. यहाँ पे देम कौन है? ये जो ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स है ना, जो लिटरिंग अराउंड कर रहे थे, उनको रोका फ्रॉम स्पॉइलिंग द ब्यूटी ऑफ द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन. और किससे रोका? स्पॉइलिंग. स्पॉइल मतलब खराब करना. SPOIL, स्पॉइल. ओके, लिसन टू मी केयरफुली. SPOIL, स्पॉइल. स्पॉइल करना मतलब खराब करना. ओके, सो स्पॉइलिंग द ब्यूटी ऑफ द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन. जो ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है उसकी ब्यूटी को खराब करने से रोका. किसने? सीमा
with the help of her father. The children apologized. APOLOGISED. Apologized मतलब माफी मांगना. ओके, अपोलोजाइज है फर्स्ट फॉर्म एंड अपोलोजाइज्ड है सेकंड फॉर्म, ईडी लगा दिया. एंड क्लीन द प्लेस. सो जो बच्चे थे जो गंदगी फैला रहे थे ना, लिटरिंग अराउंड कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, अपोलाइज किया एंड क्लीन द प्लेस, एंड दे क्लीन द प्लेस. सो इससे हमें क्या पता चलता है, हमें जो है हमारे कंट्री को डर्टी रखना चाहिए या क्लीन रखना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक? वी शुड ऑलवेज कीप आवर कंट्री क्लीन, राइट? सो हैव यू एवर मेड योर कंट्री लुक डर्टी? कभी आपने ऐसा किया है जहाँ पे आपने अपने कंट्री को जो है गंदा किया हो? वॉट यू वुड हैव डन इफ़ यू वर इन सीमा's प्लेस? अगर आप सीमा की जगह पे होते, वॉट यू वुड हैव डन, आपने क्या किया होता? इफ़ मीन्स अगर यू वर इन सीमा's प्लेस, अगर आप सीमा की जगह पे होते. सो आपने भी वही किया होता जो सीमा ने किया, राइट? क्योंकि कोई भी अगर हमारे कंट्री को डर्टी करता है, सो दैट इज समथिंग लाइक इट इज नॉट गुड फॉर अस. इट इज लाइक मेकिंग आवर होम डर्टी. हमारे खुद के घर को गंदा करना जैसा है हमारे देश को गंदा करना. सो वी शुड नेवर मेक आवर कंट्री डर्टी. ओके, सो नाउ नॉलेज मैपिंग, मतलब इस चैप्टर से हमें क्या क्या नॉलेज मिलेगी. अबाउट इंडिया वी विल लर्न, देन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वी विल लर्न. और इंडिया के 3 पार्ट हैं जो हमने वीडियोस देखे थे. एक द ग्रेट हिमालयाज, देन नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द इंडियन डेजर्ट. इन तीनों के बारे में हम इस चैप्टर में वी विल लर्न. ओके, सो अबाउट इंडिया, ABOUT, अबाउट मीन्स बारे में. और किसके बारे में? इंडिया के बारे में. सो इंडिया इज आवर कंट्री, वी शुड नो अबाउट इंडिया, राइट? सो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. VAST, वास्ट. वास्ट का मतलब क्या होता है? विशाल, बड़ा. ओके, सो अगेन यू लिसन टू मी केयरफुली. व्हाट इज वास्ट? VAST, वास्ट. वास्ट मीन्स बड़ा, विशाल. सो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, COUNTRY, with second largest population and 7th largest land area in the world. So India is a vast country. इंडिया जो है बहुत बड़ा कंट्री है with second largest population. हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सेकेंड लार्जेस्ट है. हम वर्ल्ड में नंबर 2 है पॉपुलेशन में. एंड 7th लार्जेस्ट लैंड एरिया. और जो हमारा जो लैंड एरिया है, जो हमारे पास ज़मीन है हमारे कंट्री के पास, उसके हिसाब से हम वर्ल्ड में 7th कंट्री हैं. देयर आर 28 स्टेट्स विद वाइड वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, कल्चर्स, फेस्टिवल्स एंड ड्रेसेस. सो देयर आर 28 स्टेट्स, मतलब हमारे कंट्री में कितने स्टेट्स हैं? 28. विद वाइड वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस. वाइड मतलब बहुत सारी वैरायटी है हमारे कंट्री में. किस किस की? लैंग्वेज की, कल्चर की, फेस्टिवल्स की एंड ड्रेसेस की. एंड दैट यू कैन सी, जो हमारी जो लैंग्वेज है नॉर्थ इंडिया में है और जो साउथ इंडिया में लैंग्वेज है टोटली डिफरेंट है. सो दैट मीन्स वी हैव मैनी लैंग्वेजेस. सिमिलरली कल्चर, आवर कल्चर इन नॉर्थ इंडिया is different from culture in South India, culture in East India, right? So culture भी जो है हमारे पास, हमारे यहाँ पे बहुत वैरायटी की कल्चर है. फेस्टिवल्स, हमारे यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं. एंड ड्रेसेस, राजस्थान की ड्रेस अलग होती है, तमिलनाडु की ड्रेस अलग होती है. सो देर इज वाइड वैरायटी फॉर लैंग्वेज, कल्चर, फेस्टिवल एंड ड्रेसेस. there is cultural unity among various communities in India. और जो यहाँ पे वेरियस कम्युनिटीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, उनमें क्या है? देयर इज अ कल्चरल यूनिटी. उनकी कल्चर में क्या है? यूनिटी है अमॉन्ग वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट वन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. इंडिया के जो है फिजिकल फीचर्स क्या हैं? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल फीचर्स? आपके फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं? लाइक हाउ टॉल यू आर, what is the color of your skin, what is the color of your eyes, like
वेदर योर बॉडी इज एथलेटिक और यू आर थिन. सो ये सब क्या है, फिजिकल फीचर्स हैं जिनसे आपकी पहचान होती है. सिमिलरली इंडिया के फिजिकल फीचर्स क्या हैं? इंडिया में हिल स्टेशन है, कहाँ पे हिल स्टेशन है, कहाँ पे प्लेन है, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे डेजर्ट है. ओके, सो ये सब क्या है, इंडिया के फिजिकल फीचर्स हैं. ओके, सो देयर आर सेवरल लैंडफॉर्म लाइक हिल्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड प्लेटोज. सो देयर आर सेवरल लैंडफॉर्म्स. लैंडफॉर्म क्या होता है? लैंडफॉर्म बेसिकली होती है वहाँ की ज़मीन. कहीं पे माउंटेन होता है, कहीं पे डेजर्ट होता है, कहीं पे प्लेन होता है. सो दैट इज ऑल कॉल्ड लैंडफॉर्म. सो देयर आर सेवरल, SEVERAL, सेवरल मतलब बहुत सारी. सो देयर आर सेवरल लैंडफॉर्म्स लाइक हिल्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड प्लेटर्स. डेजर्ट्स पता है आपको, रेगिस्तान. एंड प्लेटर्स क्या होता है? प्लेन. ओके, These landforms are called the physical features of India. और ये जो landforms होती है ना, माउंटेन, हिल, प्लेन, डेजर्ट, प्लेटर्स, इनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. दे आर कॉल्ड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, राइट? द लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अब ये जो हमने प्रीवियस प्रेजेंटेशन में देखी थी, एक इमेजिनरी लाइन. इमेजिनरी मतलब जो एक्चुअली में नहीं होती, हम सिर्फ उसकी इमेजिन करते हैं उसे. ओके, so the line of tropic of cancer divides India into two halves. so जो कैंसर के जो ट्रॉपिक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये डिवाइड करती है इंडिया को इनटू टू हाफ्स. दो हाफ में, दो टुकड़ों में, नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया, राइट? सो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर वाला पार्ट हमारा नॉर्थ इंडिया है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पार्ट साउथ इंडिया. So let us study the physical features of northern India in this chapter. तो इस चैप्टर हम क्या करेंगे? फिजिकल फीचर्स लर्न करेंगे of northern India. Okay? So if you see here, this is Tropic of Cancer, this is North India, this is South India. Okay? And in this, we will see what are the physical features of North India. So northern India has how many major geographical regions? 3. Northern India has 3 major geographical regions. इसका मतलब आपको पता है क्या है? नॉर्दर्न इंडिया के 3 जो हैं वो बड़े जोग्राफिकल रीजन है. जोग्राफिकल रीजन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट, माउंटेन एंड प्लेन्स. ओके, सो नॉर्दर्न इंडिया के 3 जोग्राफिकल रीजन है एंड दे आर द ग्रेट हिमालयस विच इज माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द इंडियन डेजर्ट. तो 3 जोग्राफिकल रीजन क्या है नॉर्थ इंडिया के? द ग्रेट हिमालयस, द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द इंडियन डेजर्ट, राइट? नाउ इट इज ऑल्सो सेड दैट माउंटेन्स आर अर्थ्स अनडीकेइंग मॉन्यूमेंट. अनडीकेइंग क्या होता है? जो डीके नहीं हो, जो खत्म नहीं हो, जो खराब नहीं हो. और मॉन्यूमेंट क्या होता है? ऐतिहासिक धरोहर. सो जो माउंटेन्स है वो हमारे क्या है? अनडीकेइंग मॉन्यूमेंट्स हैं. ओके, अनडीकेइंग मतलब जो कभी खराब नहीं होते, टाइम के साथ खत्म नहीं होते. सो व्हाई डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट होल्ड्स? तो आपको क्या लगता है, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज माउंटेन्स आर देयर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. हजारों साल से जो है माउंटेन्स वो हैं. ओके, दिस इज वैलिड फॉर हिमालय एंड आवर कंट्री इंडिया, राइट? So now let us come to the Great Himalayas. Okay, Himalaya आपको पता है, Himalaya is the mountain region. On the north of India, there is the Himalayan mountain range. On the north of India, India के north में there is the Himalayan mountain range. Okay, the Himalayas are the highest mountain range in the world. और जो Himalayas है ना, वो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में. मतलब ये जो पहाड़ हैं ये सबसे ज़्यादा ऊंचे हैं वर्ल्ड में. जो हिमालय के जो माउंटेन्स है ना, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द यंगेस्ट रेंजेस इन द वर्ल्ड. सो हालांकि ये सबसे जो है हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, बट दिस इज ऑल्सो यंगेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड. यंगेस्ट मतलब सबसे जो एज वाइज जो है ये जो माउंटेन है वो सबसे यंग है. The Himalayas extend from about
2,500 miles or 2,400 kilometers from the northmost to the northeastern part of the country. तो हिमालय जो है वो क्या होता है, इफ यू सी दिस, जो नॉर्थ मोस्ट पार्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट पार्ट तक एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये कुछ 2, 4, 5, 10 किलोमीटर लंबा नहीं है, दिस इज 2,400 किलोमीटर्स लॉन्ग, ओके। एंड 2,400 किलोमीटर्स कितनी डिस्टेंस होती है आपको पता है? दिल्ली से मुंबई जाना और वापस आना, इतनी डिस्टेंस है, इतनी लेंथ है ये माउंटेन रेंज की, हिमालय माउंटेन रेंज की। और कहाँ से रेंज करता है, कहाँ से कहाँ तक? नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से लेके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट क्या है? दैट इज द बाउंड्री और बॉर्डर विद चाइना, नेपाल, ओके। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक, जो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पीक? माउंट एवरेस्ट लाइज इन द हिमालयाज, ओके। सो वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक, द माउंट एवरेस्ट लाइज इन द हिमालयाज। क्लियर? नाउ हिमालय के भी क्या है? 3 पार्ट हैं। सो देयर आर 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज के जो है 3 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 हिमाद्री। सो हिमाद्री क्या है? द ग्रेटर हिमालयाज, जो बहुत ऊंची जो माउंटेन सीरीज है ना, और जो बहुत कोल्ड एरिया है, दैट इज कॉल्ड हिमाद्री, ओके। देन हिमाचल। सो हिमाचल क्या है? द लेसर और मिडिल हिमालय, ये मिडिल हिमालय है। एंड देन शिवालिक। शिवालिक क्या है? द आउटर हिमालयाज, ओके। सो ग्रेटर हिमालयाज दैट इज हिमाद्री, जो बहुत ज़्यादा कोल्ड है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंची माउंटेन रेंज है। देन कम्स हिमाचल विच इज़ द मिडिल हिमालय, एंड देन शिवालिक। शिवालिक क्या है? आउटर हिमालयाज, ठीक है। सो द ग्रेटर हिमालयाज और द हिमाद्री इज द नॉर्थ मोस्ट एंड द हाइएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। जो ग्रेटर हिमालयाज हैं और यह हिमाद्री जो है एक ही है, कि हिमाद्री एंड ग्रेटर हिमालय सेम चीज़ है। इज द नॉर्थ मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा नॉर्थ की तरफ है ये, एंड द हाइएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज, और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा ऊंची माउंटेन रेंज है। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज, ये जो है सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस रेंज है, मतलब जो माउंटेन्स है ना वो बिल्कुल कंटिन्यूस है। इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट माउंटेन पीक्स, और जितनी भी हाई जो है माउंटेन पीक्स हैं, प्रोमिनेंट मतलब बड़ी बड़ी। सो इट कंटेन्स, कंटेंट मतलब होना। सो इसमें क्या है? जो जितनी भी प्रोमिनेंट माउंटेन पीक्स हैं वो सारी हैं माउंटेन पीक्स। फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट, ओके। सो दीज हिमालयाज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, और ये जो हिमालय है, हिमालय का जो ये पार्ट है, दिस इज कवर्ड विद स्नो, ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। कवर मतलब ढका हुआ। थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर मतलब साल भर। रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर्स एंड सम पेरेनियल रिवर्स। सो जब ये पूरे साल भर बर्फ से कवर रहता है, कवर्ड विद स्नो, इससे क्या होता है? इट फॉर्म्स द ग्लेशियर। एग्जाम्पल सियाचिन ग्लेशियर, ओके, एंड सम पेरेनियल रिवर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेरेनियल? पेरेनियल होता है जो हमेशा रहे, ओके। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स क्या होती हैं? गर्मी में सूख जाती हैं, इन द समर टाइम दे ड्राई अप। बट यहाँ पे जो रिवर्स हैं दे आर पेरेनियल। पेरेनियल मीन्स दे आर ऑलवेज फुल ऑफ वाटर, ओके। एवरेज हाइट ऑफ द पीक इज अराउंड 6,000 मीटर्स, ओके। सो ये जो माउंटेन पीक्स हैं उनकी सिर्फ एवरेज हाइट इटसेल्फ इज 6,000 मीटर्स, दैट मीन्स 6 किलोमीटर्स, विच इज वेरी हाई। इट हैज़ वेरी लेस पॉपुलेशन एंड द वेजिटेशन फाउंड हेयर इज फर एंड श्रब्स, ओके। सो यहाँ पे क्या है? झाड़ियाँ होती हैं और बहुत ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं होते हैं, ओके। एंड इट हैज़ वेरी लेस पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है, इट इज़ सो कोल्ड, सो डेफिनेटली पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होगी,
so it has very less population. Very less means बहुत कम population है. And the vegetation found here is fir and shrubs. यहाँ पे क्या है, झाड़ियाँ and fir होते हैं. This is again sort of shrubs. You can search on Google with this word fir and shrubs and you will see the kind of vegetation. आप Google पे shrub and fir सर्च करके देखिए, आपको वेजिटेशन की जो है फोटोज मिलेंगी, राइट? तो ये तो हो गया ग्रेटर हिमालय. नाउ लेट अस कम टू हिमाचल और द मिडिल हिमालयाज. दिस लाई टू द साउथ ऑफ हिमाद्री. ये क्या है, जो हिमाद्री है वो तो क्या है, नॉर्थ मोस्ट है. तो हिमाद्री के क्या है, साउथ में है हिमाचल और मिडिल हिमालयाज. ये कहाँ पे है, साउथ ऑफ हिमाद्री. एंड फॉर्म द मोस्ट रग्ड माउंटेन्स सिस्टम. सो what is the meaning of rugged? rugged का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, ओके, बहुत ऊंचे नीचे. so this forms the most rugged mountain system. the average height of these Himalayas is between 3700 to 4000 meters. so आप देखिए यहाँ पे कितनी हाई माउंटेन पीक है. एवरेज हाइट इज 6000 meters which is 6 kilometers in Himadri, whereas in Himachal एवरेज हाइट क्या है माउंटेन्स की, 3700 मीटर्स टू 4500 मीटर्स. तो यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है उसकी हाइट कम है, बट दे आर रगड माउंटेन्स, दैट मीन्स ऊबड़ खाबड़. देयर आर मेनी हिल स्टेशन इन दिस रेंज. अब ये जो रेंज है ना हिमाचल या मिडिल हिमालयाज में, यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, लाइक शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी, कुल्लू, कांगड़ा एंड कश्मीर. सो ये जो है आपने सबके नाम सुने होंगे, दे आर ऑल फेमस हिल स्टेशंस. तो ये किसके पार्ट है, हिमाचल या मिडिल हिमालयाज के पार्ट है, ओके. ग्रेटर हिमालयाज में तो इतनी सर्दी होती है कि वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, ओके. एंड दीज आर द फोटोज ऑफ हिमाद्री फुल ऑफ ग्लेशियर, देन हिमाचल विच इज मिडिल हिमालय एंड शिवालिक, दिस इज आउटर हिमालयाज. सो आपको देख के ही फर्क पता चल रहा है, दिस इज द कोल्डेस्ट, यहाँ पे थोड़ी कम ठंड है और यहाँ पे सबसे कम ठंड है इन तीनों में, ओके. शिवालिक में सबसे कम ठंड होती है, हिमाचल में बीच की होती है, एंड हिमाद्री तो फुल ऑफ ग्लेशियर्स थ्रू आउट द ईयर. नाउ द थर्ड वन इज शिवालिक्स, इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज. ये हिमालयाज की जो है बिल्कुल बाहर वाली रेंज होती है. यहाँ पे जो है पहाड़ियों की हाइट और कम हो जाती है. its height varies between 900 to 1100 meters, okay. so यहाँ पे जो है एवरेज हाइट है माउंटेन्स की वो 900 to 1100 meters है. these ranges are prone to earthquakes and landslides. अब ये जो रेंजेस है ना शिवालिक्स, यहाँ पे क्या है, प्रोन मतलब जहाँ पे खतरा रहता है किसी चीज़ का, सो दे आर प्रोन. सो प्रोन क्या होता है, किसी खराब चीज़ से सफ़र करने की पॉसिबिलिटी. So these ranges are prone to earthquakes and landslides as they are composed of unconsolidated rock material, okay. So यहाँ पे क्या है, ये जो ranges है ना शिवालिक्स में, यहाँ पे सब they are prone to earthquakes and landslides. landslides क्या होती है, वो जो बड़ी बड़ी चट्टानें गिरती है ना, that is called landslide. As they are composed of unconsolidated rock material. unconsolidated क्या होता है, consolidated तो होता है जो आपस में जुड़ा हो अच्छे से स्ट्रांगली, और अनकंसोलिडेटेड है जो आपस में लूजली कनेक्टेड हो. तो यहाँ पे जो रॉक है, जो पहाड़ियाँ हैं ना, वो क्या है, अनकंसोलिडेटेड है, वो आपस में उतनी स्ट्रांगली नहीं जुड़ी हुई है. तो उससे क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं एंड लैंडस्लाइड्स होती हैं, राइट. इट कंप्राइजेस ऑफ डेंस फॉरेस्ट. कंप्राइज करना मतलब इंक्लूड करना, होना. सो इसमें क्या है, डेंस फॉरेस्ट है, डेंस मतलब घने, DENSE, डेंस. डेंस मीन्स घने जंगल, एंड FERTILE फर्टाइल सॉइल. फर्टाइल सॉइल का मतलब क्या होता है, सॉइल मतलब मिट्टी, एंड फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, ओके, जो यहाँ पे बहुत अच्छी फसल होती है. सो इट कंप्राइजेस मतलब इंक्लूड करना, होना. सो इसमें क्या क्या है, डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल, एंड फर्टाइल सॉइल. क्रॉप्स लाइक राइस, मेज, पोटैटोज एंड फ्रूट्स आर ग्रोन हेयर. क्रॉप मतलब फसल,
सो विच क्रॉप्स लाइक राइस, मेज, मेज होता है मक्का, पोटैटोस एंड फ्रूट्स आर ग्रोन हेयर, यहाँ पे ये उगाए जाते हैं। द क्लाइमेट इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, यहाँ का जो क्लाइमेट है नीदर टू हॉट, ना तो ज़्यादा हॉट और ना ही ज़्यादा कोल्ड। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो हिमालय है सिर्फ एक कंट्री में नहीं है। दिस हिमालयन माउंटेन रेंज इज शेयर्ड बाय 5 कंट्रीज। कौन कौन से कंट्रीज हैं इसमें? नेपाल, भूटान, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। सो द हिमालयाज आर शेयर्ड बिटवीन 5 कंट्रीज। कौन कौन से 5 कंट्रीज में? नेपाल, भूटान, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। द मेजर पार्ट ऑफ दिस माउंटेन इज इन नेपाल, और जो ज़्यादातर माउंटेन्स हैं वो किस में है? नेपाल में, राइट? So with this, we will stop here and we will continue with question answers in our next presentation. Please go through the chapter on your own and learn all the difficult words. Thank you.